اوکے سو وین اٹ کمس اباؤٹ باڈی لینگویج، تو باڈی لینگویج کے حوالے سے ایک بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ جب لوگوں کو باڈی لینگویج کی ڈائنامکس کا پتہ چلتا ہے تو ہم دوسروں کی باڈی لینگویج کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک شخص اپنی آرمز کو فولڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ جس کی آرمز فولڈ ہیں وہ کلوز باڈی لینگویج شو کر رہا ہے اور وہ جیلنگ ہونے والا بندہ نہیں ہے، وہ دوسروں کے ساتھ گھلنے ملنے والا نہیں ہے. یا مثال کے طور پر میں نے آپ کے ساتھ ہینڈ موومنٹس کے بارے میں شیئرنگ کی کہ جی اگر آپ کے فنگرز کراسڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹریس میں ہو سکتے ہیں، آپ ٹینشن میں ہو سکتے ہیں. اگر ایک شخص بار بار اپنی نیک کو اسکریچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہا، وہ ڈاؤٹ فل ہے. اگر ایک شخص گفتگو کر رہا ہے اور گفتگو میں بار بار وہ اپنی نوز کو ٹچ کر رہا ہے تو وہ لمبی لمبی پھینک رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ چیزوں کو ایگزیجوریٹ کر رہا ہے، وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے. اگر آپ مطلب میٹنگ میں ہیں یا آپ کوئی رپورٹ لکھ رہے ہیں اور اس رپورٹ لکھتے ہوئے بار بار آپ اپنے سر کو کھجا رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کنفیوزڈ ہوں، آپ سٹریس میں ہوں، آپ کسی چیز کو سوچ رہے ہوں. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنی چن پہ رکھا ہوا ہے اور آپ اپنی چن کو اسکریچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں یا آپ دوسروں کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ جب باڈی لینگویج کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب دیکھو اس نے ناک پہ ہاتھ لگایا ہے تو یہ تو جھوٹ بول رہا ہوگا، یا اب اس کی جو آئی بالز موومنٹس ہیں وہ ٹاپ رائٹ پہ گئی ہیں تو اب تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے ایک جیسچر کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو سکتے، رائٹ؟ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے اس نے اپنے آرمز کو فولڈ کیا ہوا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کو سردی لگ رہی ہو اور اس نے اپنے آرمز کو فولڈ کیا ہو، ایسا ہے نا. اگر ایک شخص ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنی فنگرز کو ایسے کراس کر لیا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہو اپنی فنگرز کو کراس کر کے، رائٹ؟ تو آپ نے جب بھی باڈی لینگویج کے حوالے سے ایویلیویشن کی بات آتی ہے تو کسی بھی ایک جیسچر کو دیکھتے ہوئے ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. ہم کیا کرتے ہیں، جو باڈی لینگویج ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی انسان کے جو ٹوٹل جیسچرز ہوتے ہیں ان ٹوٹل جیسچرز کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے وہ کسی شخص کی مینٹل سٹیٹ کے بارے میں اندازہ لگا پاتی ہیں یا اس کی ایموشنل سٹیٹ کے بارے میں رائے قائم کر پاتی ہیں کہ ہاں یہ شخص جو ہے یہ اس وقت اس مینٹل یا ایموشنل سٹیٹ میں بیٹھا ہوا ہے. مثال کے طور پر بورڈم کا جو جیسچر کلسٹر ہے وہ علیحدہ ہے. اگر ایک شخص سیڈ فیل کر رہا ہے اس کا جیسچر کلسٹر علیحدہ ہوگا. اگر ایک شخص بہت پرجوش فیل کر رہا ہے اس کا جیسچر کلسٹر علیحدہ ہوگا. اگر ایک شخص بہت زیادہ ہیپی فیل کر رہا ہے اس کا جیسچر کلسٹر علیحدہ ہوگا. سو یہ جو سلائیڈ ہے یہ اس لیے شیئر کی کہ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ کسی کی ایک جیسچر کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں رائے قائم کریں، بلکہ کلیکٹیولی جب آپ کسی کے جیسچرز کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو اس کی مینٹل یا ایموشنل اسٹیٹ کے بارے میں رائے قائم کریں گے. سو اس میں دا فرسٹ تھنگ جس پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے، اٹس آل اباؤٹ ہینڈ شیک. دیکھیں جو ہینڈ شیک ہے یہ آپ کی پرسنالٹی کا عکاس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کانفیڈنٹ پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، جو پاورفل پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، جن کا سیلف امیج، جن کی خود ہی بہت بلند ہوتی ہے، وہ جب بھی دوسروں سے ہینڈ شیک کرتے ہیں تو دوسرے شخص کو وہ فیل کرواتے ہیں کہ ہاں میری پریزنس میٹر کرتی ہے. لیکن وہ لوگ جو شائع ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کا سیلف امیج پور ہوتا ہے، جن کی خود ہی بلند نہیں ہوتی، یا وہ لوگ جو سٹریس میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو جاب کے سٹریس میں رہتے ہیں، وہ لوگ جن کو اپنا کام ہی پسند نہیں ہوتا، تو وہ جب بھی آفیشیلی دوسروں سے ہینڈ شیک کرتی ہیں تو وہ ہینڈ شیک کوئی اتنی دوسرے کو یہ فیل نہیں کرواتا کہ ہاں یار یہ میں کسی افسر سے ملا ہوں. تو آپ کا جو ہینڈ شیک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے باس سے کیسے ہینڈ شیک کریں گے، آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے کیسے ہینڈ شیک کریں گے، آپ جب جونیئر سے ہینڈ شیک کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو ہم کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ انٹرنیشنلی کون کون سے ہینڈ شیکس ہیں جو آئی مین کے بڑے کامن ہیں، اور پھر اس میں کون سا ہینڈ شیک ہے جو آپ کو کرتے ہیں، رائٹ؟ تو آپ میں سے کوئی آ سکتے ہیں باہر تاکہ ہم تھوڑی سی اس کو ڈیمو کو دے سکیں. جی جاور آپ آ جائیں.
अच्छा, so this is the first type of handshake, is commonly known as crusher handshake. अगर आप ट्रम्प को देखें तो ट्रम्प जब भी हैंडशेक करता है तो वो दूसरे शख्स के हाथ को अच्छे से क्रश करता है, और वो लोग जो क्रशर हैंडशेक करते हैं बेसिकली उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि वो दूसरे को ये फील करवाना चाहते हैं कि आई एम द बॉस, आई एम द अथॉरिटी, आई एम द पावर, राइट। तो आपने कभी भी क्रशर हैंडशेक नहीं करना। आप किसी सीनियर से मिल रहे हैं, जूनियर से मिल रहे हैं, सीनियर से तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता। सीनियर से मिलने का तो मैं बताता हूँ कि जो है ना वो क्या डेकोरम है, लेकिन अगर आप किसी जूनियर से भी मिल रहे हैं तो आपने क्रशर हैंडशेक नहीं करना। और सेकंड थिंग इज ग्लव हैंडशेक। अब आप इधर ही खड़े हैं जी जी। अब सेकंड थिंग इज ग्लव हैंडशेक। ग्लव हैंडशेक ये होता है कि आप हाथ पे हाथ रखते हैं, आप दोनों हाथों से हैंडशेक करते हैं। अब ये ग्लव हैंडशेक क्या होता है कि आप दूसरे शख्स को ये फील करवाते हैं कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, और मैं आपके साथ अपने ताल्लुक को बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। आप अपने काउंटर पार्ट के साथ, दोस्तों के साथ इस किस्म का हैंडशेक कर सकते हैं। बेसिकली ये ब्लफ हैंडशेक भी कहलाता है, इसको पॉलिटिशियन हैंडशेक भी कहते हैं, कि जैसे सियासतदान इलेक्शन कैंपेन्स में तो बड़ा ऐसे हाथ मिलाते हैं और बाद में फिर ऐसे भी नहीं हाथ मिलाते, राइट। सो ये जो ग्लव हैंडशेक है, ये अगर आप किसी अपने जूनियर को कोई थपकी देना चाह रहे हैं, शाबाशी देना चाह रहे हैं, उसका मोरल बूस्ट करना चाह रहे हैं, वो बहुत उसने कोई 18 घंटे ड्यूटी की है और या वैसे ही वो बेचारा किसी वजह से परेशान है, लेकिन आपने अपनी टीम से काम भी लेना है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा फील करवा रहे हैं कि टेंशन नहीं लेनी है, आप मतलब मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो कुछ कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप किसी से अच्छे से हाथ मिला लें तो वो हाथ ही मिलाना आपका दूसरे को फील करवाता है कि जी समथिंग इज पॉजिटिव। आगे जी फास्ट और रश हैंडशेक। फास्ट और रश हैंडशेक ये होता है कि जल्दी जल्दी अस्सलाम वालेकुम जी बस ऐसे मिले और चले गए, राइट। इसमें ये है कि यू आर नो मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपके लिए कोई दूसरा इम्पोर्टेंट ही नहीं है और आप बस ऐसे ही चलते फिरते उससे हाथ मिला दिया। अच्छा, एक होता है वेट नूडल, वेट फिश या डेड फिश हैंडशेक। ये मम्मी डैडी हैंडशेक होता है। आपने अपने आसपास कोई ना कोई स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ऐसे मम्मी डैडी, मॉम डैड बॉयज देखे होंगे कि जो अस्सलाम वालेकुम ऐसे ज़रा लड़कियों की तरह हाथ मिलाते हैं, क्योंकि लड़कियाँ सनफे होती हैं। वैसे तो आजकल सनफे यहाँ है, बिकॉज माशाल्लाह स्पेस में जा रही हैं, माउंट एवरेस्ट जो है वो सर कर रही हैं, तैयारे उड़ा रही हैं, और भी सिविल सर्विसेज में मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। आपकी तो डायरेक्टर ख़तून है, फिर अगर डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस देखा जाए वो भी ख़तून है, फिर DMG में उसी ऑफिसर्स हैं। तो उसमें ये है कि जो वेट फिश है उसमें ये है कि आपका हाथ इतना नरम होता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपके हाथ में कोई फिश आ गई है, कोई नूडल आ गई है जो फिसल जाएगी। तो ये जो मर्दे मोमिन है, मर्दे मोमिन का जो हैंडशेक है वो एटलीस्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज टॉपर और डोमिनेंट हैंडशेक। अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें आप क्या करते हैं, आपका हाथ ऊपर होता है और दूसरे शख्स का हाथ नीचे होता है। अगर आप ब्रिटिश रॉयल फैमिली को देखें तो रॉयल फैमिली क्या करती है, उनके जो मेंबर्स हैं वो टॉपर हैंडशेक करते हैं। अगर आप रशियन प्रेसिडेंट या अमेरिकन प्रेसिडेंट की मीटिंग देखें तो दोनों की कोशिश होगी कि वो टॉपर हैंडशेक करें। इसका मकसद ये होता है कि दूसरे को ये फील करवाना कि आई एम डोमिनेंट, आई एम सुपीरियर। द नेक्स्ट हैंडशेक इज लुक अवे हैंडशेक। अब जो लुक अवे हैंडशेक है ये मोस्टली 98% लोग करते हैं जो हमारी सोसाइटी में, हम दोस्तों से, फैमिली में मिलते हुए, कि हम जब दूसरों से हाथ मिलाते हैं तो हम हाथ मिला लेते हैं, कोई इतना प्रॉपरली नहीं मिलाते और हम प्रॉपर आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं करते, राइट। और हम दूसरों को ये फील करवाते हैं कि हम जल्दी में हैं या आप मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हैंड हग क्या है जी? हैंड हग ये है कि आप यारी दोस्ती में जो है ना ऐसे मतलब जब हाथ मिलाते हैं तो इसको हैंड हग कहते हैं। बट वी आर टू टॉक अबाउट द नाइस हैंडशेक, राइट। हमने नाइस हैंडशेक को डिस्कस करना है कि नाइस हैंडशेक क्या है। आपने 4 बातें याद रखनी है व्हेनेवर यू आर शेकिंग हैंड विद एनीवन, विद योर बॉस, with your senior, with your junior, with your colleagues, right? Because ये जो मुसाफा करना है ये एक बड़ा आर्ट है और इस आर्ट में 4 बातें जाबर आपने याद रखनी हैं। तो आपने, आपका नाम जाबर है लेकिन आपने जाबराना तरीके से क्रशर हैंडशेक नहीं करना, ठीक है। आपने नाइस हैंडशेक करना है और नाइस हैंडशेक में पहली चीज़ क्या है कि आपने अपने हाथ की ग्रिप को ना ही
क्रश करना है, ना ही आपने जेंटली सॉफ्टली होल्ड करना है, बल्कि ऐसे आपने होल्ड करना है कि उसमें वार्मनेस नजर आए, राइट? आपका ये जो अंगूठा है दूसरे शख्स के अंगूठे के साथ टच करे, द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अब आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने स्टीयर करना है, आपने घूरना है। आई कांटेक्ट का मतलब ये है कि 3 to 5 सेकंड्स आपने दूसरे शख्स के साथ गेजिंग लेवल को मेंटेन करना है। अब गेजिंग लेवल कौन सा होगा, इंटीमेट गेज होगा, आई मीन फॉर्मल गेज होगा, इसको मैं आगे आई कांटेक्ट के सेक्शन में डिस्कस करूंगा। थर्ड थिंग इज कि आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप बॉस से मिल रहे हैं तो वो स्माइल पास कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। और स्पेशली जब आप जूनियर से मिल रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको स्माइल पास करके थोड़ा सा ईज करें। आप ये ना समझें कि यार हमें तो कोई स्माइल नसीब हुई नहीं है, तो आप एटलीस्ट आप अपने चेहरे पे स्माइल रखें। जब आप स्माइल पास करेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि स्माइल इज अ कंटेजियस थिंग। मैं मुस्कुराया तो आप मुस्कुराए, देखिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो साथी साहब मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ही है। सो आपने मुस्कुराहट पास करनी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आप जब भी किसी से हैंडशेक करते हैं तो आपने अपने शोल्डर्स को डाउन नहीं करना। नो नीड कि जी आप ऐसे झुक के सलाम करें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बताएं कि क्या बॉस इससे खुश हो जाएंगे, सीनियर्स खुश हो जाएंगे? सीनियर्स ने, बॉस ने आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज की बुनियाद पे आपसे खुश होना है। उन्होंने इस बात से खुश नहीं होना कि आप कितना झुक के सलाम कर रहे हैं। सो आपने कभी भी अपने शोल्डर्स को डाउन नहीं करना, आपके शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए और आपका जो वेट है वो इवनली आपके फीट पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, राइट? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने काउंटर पार्ट से हैंडशेक कर रहे हैं तो आपने हैंडशेक करते हुए, अगर आप काउंटर पार्ट से हैंडशेक कर रहे हैं और आप बड़ी अटैचमेंट या क्लोजनेस का मुजाहरा करना चाह रहे हैं तो आप उसको उसकी एल्बो से होल्ड करके आप उसको शेक कर सकते हैं, राइट? और वो भी ऐसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यू आर माय काउंटर पार्ट, तो आप क्या करें, आप इसको होल्ड करके इसको आप शेक कर सकते हैं 2 से 3 सेकंड तक, राइट? इसी तरह अगर आप जूनियर से हैंडशेक कर रहे हैं तो आप जूनियर को भी अगर आप ये फील करवाना चाह रहे हैं कि आप उससे खुश हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस से खुश हैं, तो आप उसको यहाँ से होल्ड करें या आप उसको यहाँ से होल्ड करके साथ आप थपकी भी दे सकते हैं, राइट? लेकिन कभी भी किसी सीनियर के साथ नहीं करना। लेट्स सपोज के लिए आप डीडी साहब आए हुए हैं और आप उसको कहीं सर और सुनाई जा रहे हैं, कहना है कि यार इसको क्या हो गया, ये क्या काम कर रहे हैं, राइट? तो सीनियर्स के साथ नहीं ये करना, आप अपने काउंटर पार्ट या जूनियर्स के साथ कर सकते हैं, राइट? सो अगर कोई अननोन बंदा है और आप उसको फील करवाना चाह रहे हैं कि यू आर अननोन, तो आपने अगर उससे हैंडशेक करना है तो फिर आप अपना पूरा जो आर्म है वो एक्सटेंड कर देते हैं एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट प्रॉक्सिमिक्स, कि आप जब दूसरों से किसी अजनबी से मिलते हैं तो आपने कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर आपका काउंटर पार्ट है, आपका दोस्त है, आपका कोलीग है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी आर्म को फोल्ड कर लेते हैं और डिस्टेंस कम हो जाता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट हैंडशेक। और इसका क्रक्स ये है कि 4 बातें आपने याद रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज योर आई कॉन्टेक्ट, सेकंड थिंग इज योर हैंडलिंग, थर्ड थिंग इज योर स्माइल एंड द फोर्थ थिंग इज योर स्टैंडिंग पोस्चर। तो ये चीज़ आपने जो है वो, और लेडी ऑफिसर्स क्या करेंगी? लेडी ऑफिसर्स अगर ग्रीटिंग्स करना चाह रही हैं तो आप क्या करें, आप जस्ट जो आपका स्टैंडिंग पोस्चर है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए और आप फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ ग्रीट करें, वर्बली ग्रीट करें। और फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि गेजिंग लेवल क्या होना चाहिए, स्माइल कितनी होनी चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किससे ग्रीट कर रहे हैं। प्लीज टेक योर सीट और इसके लिए क्लैप करें। थैंक यू।